तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा इटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल। हम लोग इससे पहले सारे डेवलपमेंट मॉडल डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने वाटरफॉल मॉडल डिस्कस कर लिया था। ठीक है। अच्छा, एक बात बिल्कुल ध्यान देने की है, जितने भी मॉडल्स हैं उसमें सब में कहीं ना कहीं हमारी एनालिसिस पार्ट, डिजाइन पार्ट, टेस्टिंग पार्ट, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, ये सब मेंटेनेंस पार्ट, ये सब चीजें जुड़ी होंगी। लेकिन किस ऑर्डर में आएंगी, किस तरह से आएंगी, किस तरह से उनका अपीयरेंस होगा, कैसे वो फॉलो किया जाएगा, ये सब चीजें थोड़ा सा हम लोग को देख के चलेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए इटरेटिव मॉडल। इटरेटिव मॉडल लिखिए। इटरेटिव मॉडल, इटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल, बल्कि यूं करके लिखिए, इटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल्स aims to develop a system aims to develop a system through building small portions of all the features, through building small portions of all the features when we build a product, when we build a product which meets the initial scope। देखिए इटरेशन शुरू कैसे होता है, ये मैं लिखवा रहा हूँ आपको। when we build a product which meets the initial scope and release it quickly and release it quickly for customer feedback, for customer feedback and release it quickly for customer feedback। In each increment, देखिए, in each increment a slice of a system, a slice of a system यानी थोड़ा सा portion, a slice of a system is delivered, is delivered। In this type of model, in this type of model, we start with some of the software specifications, some of the software specifications आप लोग को एक स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रहा है आपको बेटा? यस। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। जो स्क्रीन शो हो रही है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। डन। हो गया? ठीक। with some of the we start with some of the software specification and develop the first version of the software and develop the first version of the software। After the first version, after the first version,
If there is a need to change the software, if there is a need to change the software, then a new version of software is created. Then a new version of software is created. If there is a need to change the software, then a new version of software is created. This is called next iteration. This is called next iteration. Every release, every release of the iterative model, every release of iterative model finishes finishes in an exact and fixed period and fixed period that is called iteration. That is called iteration. The iterative model has various phases. The iterative model have various phases. The iterative model have various phases. सबसे पहला फेज है इंसेप्शन. सबसे पहला फेज है इटरेटिव मॉडल का इंसेप्शन. Inception. At this phase, inception, INCEPTION, inception. Okay, in this phase, the goal is to be established. The goal is to be established for the system. For the system. We should identify all the external entities. We should identify all the external entities that will interact with the system. That will interact with the system. Then this information is used to access this information is used to access
is used to access the system and checks for the further updation for the further updation. Next phase is elaboration. Elaboration. Next time. In this phase, we develop an understanding of the problem. In this phase, we develop an understanding of the problem and architecture framework. And architecture framework. And architecture framework. कॉमा करके लिखिएगा. Develop the project plans. Develop the project plans and identify the risks. Develop the project plans and identify the risks. Next phase is construction. Next phase is construction. Construction. In this phase, we incrementally fill in लिखिएगा. Fill in साथ में. We incrementally fill in the architecture, with production ready code product produced from analysis, design, implementation and testing of the requirements. With production ready code produced from analysis, design, implementation and testing of the requirement. The components of the systems are dependent. The component of a system are dependent on each other. The components of the systems are dependent on each other. On the completion of this phase, we have a complete working software. On the completion of this phase, we have a complete working software. Last phase is transition phase. Transition,
ANSITION, transition. At this phase, we deliver the system to the production operating environment. At this phase, we deliver the system to the production operating environment. अब पैराग्राफ बदल के लिखिएगा. Once all the phases will be done once, all the phases will be done once, the construction phase will be incrementally visited. The construction phase will be incrementally visited for each increment. For each increment. देखिए, when to use the iterative model. अच्छा, एक चीज और है, इससे पहले एक बात समझ लिए. जो रिक्वायरमेंट फेज होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस फेज, डिजाइन फेज, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, रिव्यू एंड मेंटेनेंस, ये सारे फेज भी आपको इलेबोरेट करना होंगे. मैं एक एक लाइन में चाहे कहिए लिखा दूं, चाहे आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वाटरफॉल मॉडल में भी यही सब चीजें लिखवाई. काम वही होता है, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन यानी एनालिसिस पार्ट, उसके बाद डिजाइन पार्ट. ठीक है ना. डिजाइन पार्ट में डेटा फ्लो डायग्राम, एक्टिविटीज, क्लास डायग्राम या स्टेट डायग्राम डायग्राम, जो जितने भी चीजें डायग्राम होती हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, वो सब चीजें आप इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं डिजाइन फेज में. डिजाइन के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन आती है, इसको बेसिकली हमने वाटरफॉल मॉडल में भी बताया था कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है हमारा, हमें कोड बनाना उसका, यानी जो हमने डिजाइन कर लिया है अब उसको पर कोडिंग इम्प्लीमेंट करना. और कोडिंग कैन बी ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज यूज करके कोडिंग हो सकती है. ठीक है ना. तो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. अच्छा, उसी के साथ साथ हम लोग यूनिट टेस्टिंग भी उसी में करते हैं. हमने वाटरफॉल मॉडल में बताया था इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग. इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या, वो छोटा छोटा कोड लिखते गए, उसको टेस्ट करते गए, छोटा छोटा कोड लिखते गए, टेस्ट करते गए. और जो फोर्थ स्टेज है हमारी टेस्टिंग, वो टेस्टिंग होती है हमारा सिस्टम टेस्टिंग. सिस्टम टेस्टिंग का मतलब क्या है? सिस्टम टेस्टिंग का मतलब यह है कि फाइनली जब सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो गया, उसको यूजर एंड के ऊपर जाके टेस्ट करना, यानी रनिंग द सिस्टम, रनिंग टाइम में जो सिस्टम टेस्ट होता है. ठीक है ना. तो टेस्टिंग के इसमें क्राइटेरिया भी अलग अलग होते हैं. देयर आर मेनी मेथड्स फॉर टेस्टिंग. जब हम टेस्टिंग पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ये सारी टेस्टिंग होती हैं. वो टेस्टिंग हम बाद में पढ़ेंगे, अभी टेस्टिंग का पढ़ने का समय नहीं है. अभी मॉडल्स हमें दिमाग में लानी है खाली. ठीक है. और डिप्लॉयमेंट कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है ना. कि जब हमारा फाइनली सॉफ्टवेयर जो है वर्किंग एनवायरनमेंट में वर्क करना शुरू कर देता है, तो उसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट यानी इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन के लिए या डिप्लॉयमेंट, दोनों वर्ड का मतलब एक ही है, इम्प्लीमेंटेशन या फिर डिप्लॉयमेंट. क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हम कोडिंग के टाइम पे यूज कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा इम्प्लीमेंटेशन को यूज नहीं करेंगे. लेकिन उसके बाद ही हमारा एक पार्ट इसमें जुड़ जाता है जो इटरेटिव मेथड में है. इटरेटिव मेथड में देखिए, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद रिव्यू एक हमारा आ गया. हमने आपको वो लिखवाया था ना, अभी स्क्रीनशॉट दिलवाया है इसके फिगर का, इटरेटिव मॉडल का स्क्रीनशॉट जो है. इसमें देखिए लास्ट में एक ऑरेंज कलर की स्ट्राइप में रिव्यू लिखा हुआ है. तो रिव्यू एक पार्ट ऐसा है, रिव्यू का मतलब होता है कि जब प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, तो जो नए मैंने कोई एरर आती है या कुछ और नई प्रोसेसेस उसमें जोड़नी होती हैं, तो वो रिव्यूज उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं. और उसका फिर से ये काम शुरू कर दिया था रिव्यू के बाद. जो चीजें आई हैं सामने कि इसमें ये अपग्रेडेशन होना चाहिए, ये चेंजेस होना चाहिए या अपडेशन होना चाहिए, तो उसको और फिर से इम्प्लीमेंट किया जाता है.
ठीक है, तो ये रिव्यू पार्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बीच में जो जुड़ गया है इटरेटिव मेथड में, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आती है बात वही मेंटेनेंस। मेंटेनेंस डिप्लॉयमेंट के बाद ही आएगा, जब हमारा सिस्टम वर्किंग एनवायरनमेंट पे रन होने लगे, ठीक है ना। तो ये इम्प्लीमेंटेशन लास्ट में आता है। अब हम बात करेंगे इटरेटिव मॉडल कहाँ पे यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। इटरेटिव मॉडल में एक दो चीजें हैं वो लिख ली। व्हेन वी यूज इटरेटिव मॉडल, we use iterative model we use iterative model when the software application is large. We use the iterative model when the software application is large. पहला, ये पहला हो गया। अब सेकंड हो गया, दूसरी जरूरत कब होती है, when there is a requirement of frequent changes in future, when there is a requirement of frequent changes in future, when there is a requirement of frequent changes in future, ठीक है। ये तो नीड हो गई, कब हम यूज करेंगे। अब इसका इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस, एडवांटेजेस में जल्दी से कुछ मैं एक दो पॉइंट लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेस्टिंग या फिर इसको डिबगिंग, टेस्टिंग कह लीजिए चाहे डिबगिंग कह लीजिए, ड्यूरिंग ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज इजी। टेस्टिंग एंड डिबगिंग ड्यूरिंग ड्यूरिंग द इटरेशन, ड्यूरिंग द इटरेशन इज इजी। टेस्टिंग एंड डिबगिंग ड्यूरिंग द इटरेशन इज इजी। It is easy to accept the ever-changing need of the project. It is easily acceptable. It is easily acceptable to ever-changing needs of the project. Next है, risks are identified and resolved during the iterations. Risks are identified. Risks are identified and resolved during the iterations. Risks are identified and resolved during the iterations. Last है, limited time is spent on the documentation and extra time for designing. Limited